بیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج لائلز فیملی کے ساتھ ہیں. دعائیں کر رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی نشریات 24 گھنٹے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں. پریز دا لارڈ. خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. شکر گزار ہیں آج پھر اس پروگرام بابرکت گھرانے میں بلیسڈ فیملی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے برکت چاہتے ہیں. اور آئیے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس پروگرام کی مرکزی آیت مقدسہ کو دیکھیں گے. 2 سیموئیل اس کا 7واں باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت مقدسہ ہے اور میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا اسے. اور یہاں پر یوں لکھا ہے, اور اے مالک خداوند تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں اور تو نے اپنے بندے سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے, سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے. کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے اور تیری ہی برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے. مقدس داؤد اس دعا کو جب کر رہے ہیں تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ واقعی اگر خداوند ہی کی برکت ہمارے گھرانوں پر ہو پھر ہی وہ پائیدار رہتے ہیں, اور اگر خداوند ہی کی برکت ہو ہم پر اور خداوند ہی ہمیں سنبھالے تو خداوند ہی برکت دے تو پھر ہی ہمارے گھرانے سدا مبارک رہتے ہیں. تو ناظرین, اس پروگرام میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے, اس میں آنے والے مہمانوں کے ذریعے ہم آپ تک گواہیاں پہنچائیں, ان کے جو اسپرچول ایکسپیرینسز ہیں, روحانی تجربات ہیں, وہ آپ تک پہنچائیں, اور ان روحانی تجربات کو اور ان باتوں کو جو کلام میں سے کی جاتی ہیں آپ تک پہنچا کر ہم جو ہے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں اس طرح لیڈ کر سکیں اور رہنمائی کر سکیں کلام میں سے اور روح القدس کے وسیلے سے, کہ آپ کے گھرانے بابرکت بن جائیں, اور اگر بابرکت ہیں تو اور بابرکت بن جائیں, اور ایسے بابرکت بن جائیں کہ وہ سدا مبارک ہوں. سو خداوند آپ کو برکت دے. آج ہمارے ساتھ ہماری جو مہمان ہیں وہ پاسٹر مریم بہادر ہیں جو دبئی سے ہیں, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے پیارے بھائی پاسٹر بشیر بہادر کو بڑا مس کر رہے ہیں. وہ تو نہیں آ سکے, پاکستان ابھی نہیں آئے, لیکن وہ آئی ہیں اور بہتر سمجھا ہم نے کہ ان کی ایمان افروز گواہیاں آپ تک پہنچیں. اور جب میری بہن کی ایمان افروز گواہی کو آپ سنیں گے تو میرا ایمان ہے آپ کا ایمان اور زیادہ بڑھے گا, اور یہ گھرانے بابرکت گھرانے بن جائیں گے جو خدا کے کلام کے مطابق ان گواہیوں کو سنیں گے. سو میں چاہتا ہوں ہم اپنی بہن کی طرف جائیں. اور جی سسٹر جی, کیا حال ہے؟ پریز دی لارڈ, ہالیلویا. خدا یسوع برکت دے آپ کو. آمین. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ وہ آپ کا تعارف سنیں, اور ساتھ آپ پاسٹر بشیر بہادر کے متعلق بھی کچھ کہیے گا. تو آپ اپنا تعارف بیان کریں گے, کتنے سالوں سے آپ خدمت میں ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھائیں گے بات کو. پریز دی لارڈ. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں. آج میں بے حد خوش ہوں اور خدا کی شکر گزار ہوں جوشوا ٹی وی کے لیے, جس کے توسط سے آج ڈاکٹر طارق صاحب کے ساتھ میں آپ سب سے مخاطب ہوں. میں خدا کا شکر کرتی ہوں اور اس چینل کے لیے یسوع کے نام سے برکت مانگتی ہوں. آمین.
बाबरकत घराने के ताल्लुक से ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, बहुत ही खूबसूरत नाम दिया है और यकीनन ये एक हमारी बुनियादी ज़रूरत है Yes. हमारे मसीही घरानों की कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें और इसके वसीला से हम खुदा के कलाम में से सीखें और दूसरों को सिखाने वाले हों Amen. और अपने बच्चों को भी उस तौर पर परवान चढ़ाने वाले हों जिस तौर पर हमें उनकी तरबियत करनी है। आमीन। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, खुदा का शुक्र हो। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ अपने बारे में और अपने हस्बैंड के बारे में, फिर मैं बच्चों के बारे जी में बच्चों के बताऊंगी। बारे में भी जी, क्योंकि सबसे पहले बड़ा अच्छा लगेगा हाँ जी, हमें। सबसे पहली बात मियाँ बीवी हैं, उसके जी, बाद बच्चे बच्चे हैं। हैं, जी। तो सबसे पहले पास मैं बहुत खुदा की शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छा शौहर दिया, बहुत अच्छा आमीन। हस्बैंड दिया जो खुदावंद के डर और खौफ में रहने वाले हैं और खुदावंद के साथ चलते हैं। आमीन। मैं सबसे बड़ी खुशी की बात मैं अपने अजीज़ बहनों भाइयों को घरानों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हमारी शादी को तकरीबन 36 ईयर्स हो गए हैं। मैंने अपने हस्बैंड को शुरू से आज तक वैसे ही पाया है जैसे वो शुरू में थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये भी बड़ी बात है और कोई पहली एवर दुनिया की खतून है जो इस बाबरकत घराने में आकर ये कह रही हैं कि उनका शौहर वैसा ही है जैसे पहले दिन से पाया। हालेलुया। तो ये कितनी बड़ी खुशी की ये बात बड़ी है खुशी सच की में। और बात है आप यकीन सिस्टर करें, जी। देखिए आप मेरी फीलिंग को जान सकते जी, हैं। आई जी, लव जी। माय हस्बैंड यस मोर देन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जी हाँ, मैं सबसे तो मैं पहले चाहता हूँ हस्बैंड है, फिर जी, बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ नाजरीन को आप अपना नाम, आप सबका भी नाम बता हाँ जी, मैं अपनी बहनों को और भाइयों को बच्चों को भी मैं बताना चाहती हूँ। मेरा नाम पास्टर मरियम बहादुर है और मेरे हस्बैंड पास्टर बशीर बहादुर हैं और हमारा ताल्लुक यूएई से है। बेसिकली हम लोग कराची से हैं और खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें वहाँ रखा है और अब हम वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं और इसके बाद और भी बहुत सी जगहों पर खिदमत के लिए जाते हैं। आमीन। और कराची में भी आपके चर्चेज हैं, चर्च ऑफ द हाँ जी, होली स्पिरिट हाँ मिनिस्ट्रीज। हाँ जी, ये बड़ी खुशी की बात है और आप सब चर्चेज ऑफ द होली स्पिरिट मिनिस्ट्रीज के चेयरमैन भी हैं हाँ जी। और शुक्र है कि आप उनके साथ मिलकर खिदमत कर रही हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? हाँ जी, सबसे पहले मेरे ख्याल में एमनेस्टी का तारुफ करवा दूँ। जी, मुझे बड़ा अच्छा हाँ लगा। जी, बस अब हमारे चर्च की बुनियाद जो है आज से तकरीबन जो बाकायदा यानी जिसको कहते हैं कि लाइसेंस जब हमने मिनिस्ट्री का लिया, कराची में चर्च बनाया 15 साल हो गए हैं, लेकिन हमें खुदावन में आए हुए 20 साल हो चुके हैं आमीन। और हम सऊदी अरब में थे। ये गवाही के तौर पर बताना जी चाहती जी, हूँ। मुझे अच्छा लगा। तो मैं सऊदी अरब में थी, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी, जब खुदावंद ने हमें कॉल दी और हमें बुलाया और हमें अपना बनाया और अपने बेटे और बेटियां बनाया। और ये 20 साल पहले की बात है। खुदावंद ने हमें उस सरजमीन से चुना जो बिल्कुल सहरा है, डेजर्ट, और खिदमत करने के लिए गए थे मेरे हस्बैंड, अपना बिजनेस करने के लिए अपने जॉब के सिलसिले में गए थे, लेकिन खुदावंद पाक खुदा की मर्जी थी कि उस जगह पर वो हमें खादम भी बनाए। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो ख़ास गवाही मैं ये बताना चाहती हूँ बस अब कि खुदावंद ने हमारे सबसे पहले बेटे जो पहला फल होता है डॉक्टर सनी बहादुर, उसको चुना और उसके वसीला से फिर हमारे पूरे घराने को अपनी बादशाही के लिए तैयार किया। आमीन, प्रेज़ द हालेलुया। प्रेज़ द तो लॉर्ड। हमने फिर वहाँ पर सऊदी अरब में आफ्टर 2 इयर्स हमने वहाँ पे चर्च बनाया अपने घर में और उसके बाद एक और चर्च बनाया। फिर खुदावंद ने हमें हमारी खिदमत को वहाँ पे बढ़ाया और खुदावंद ने आमीन। बहुत काम किया वहाँ पे हमारे वसीला से, ना सिर्फ हमारे वसीला से, हमारे बच्चों के वसीला से। मैं आमीन। यहाँ पे ख़ास बात जो अपने लोगों को बताना चाहती हूँ, बहनों को खास तौर पर, कि खुदावंद ने जो काम हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा किया वो ये था कि अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, लेकिन पास्टर मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमारे लिए परेशान हुए और उन्होंने हमें नई ज़िंदगी का रास्ता दिखाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ये नई हालेलुया। बात है। पहले हमारे बच्चे को खुदा ने चुना, बड़े बेटे को, उसने अपने सारे बहन भाइयों को तब्दील किया आमीन। विद इन 3 months। हाँ, खुदावंद का रास्ता दिखाया, व्हाट इज बैप्टिज्म, व्हाट इज होली स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एंड व्हाट इज सैल्वेशन। ये आमीन। तीनों बातें उसने आमीन। हमें सिखाई। आमीन, आमीन। फिर मुझे खुदावंद के पास लाए और विद इन अ ईयर मेरे हस्बैंड को, यानी आमीन। 1 साल के अंदर हमारा पूरा घराना, तू निजात पा तो तेरा घराना निजात पाएगा। ये वादा ये पूरा वादा हो गया। खुदावंद ने पूरा हालेलुया, किया और प्रेज़ द हमारे बच्चों लॉर्ड। के वसीला से, और आमीन। सारे बच्चे खुदावंद में आए पहले हाँ। और हम उसके बाद। वाह वाह, तो ये प्रेज़ द बात लॉर्ड। है। नाजरीन देखा, और मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम व्यूअर्स
उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी किसी वक्त भी अगर आप निजात याफ्ता नहीं हैं तो शायद आपके बच्चे हालेलुया, आपके लिए इस राह को तैयार करने वाले हों। बेशक। इसलिए ज़रूर खुदावंद की हज़ूरी में रहें और जो लोग खुदावंद में चलते हैं उनकी सुने। शायद खुदावंद आपको आपके बच्चों के वसीले बदल दे। और जो बच्चे मसीह में और उनके वालिदैन अभी तब्दील नहीं हुए, उन्होंने नई ज़िंदगी नई पैदाइश का तजर्बा नहीं पाया, मैं आपसे कहूँगा आप बेदिल ना हो, दुआ करें, Yes, खुदा के वादे को hallelujah, सामने रखें कि तू hallelujah, निजात पा तो तो तेरा तेरा घराना पूरा निजात घराना पाएगा, इस तो आपका घराना निजात पा जाएगा। आमीन। मेरे वालिद साहब भी सबसे पहले अपने ख़ानदान में वो तब्दील हुए, फिर मेरे दादी दादा तब्दील हुए, फिर सारा घराना तब्दील हुआ और ख़ानदान, फूफियाँ, चाचू सब तब्दील हो गए। और इस तरह वो भी पहला फल हुए हमारे ख़ानदान में, मेरे वालिद साहब। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी गवाही सुनकर। यकीन जाने मुझे अच्छा लग रहा है और पाकरू की जुम्बश इस जगह पर जो है उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन जी। तो मैं चाहता हूँ आप इस गवाही को आगे बढ़ाएं। हकीकत में पास आई फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हाँ, यस, हालेलुया, हालेलुया, सारा जलाल यीशु को मिले। आमीन, यस। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि हम इस लायक ना थे, लेकिन ये उसका फजल है कि उसने हमें चुना और खुदावंद ने हमें खिदमत दी और अपने नाम और जलाल के लिए खड़ा किया। और उसके बाद हमने सऊदी अरब में 2 चर्चेस बनाए और खिदमत की। और उसके तकरीबन 3 साल के बाद हम पाकिस्तान कराची में आए और वहाँ पर हमने फिर खिदमत का आगाज़ किया। बाकायदा तौर पर अपनी मिनिस्ट्री को रजिस्टर करवाया, मिनिस्ट्रीज ऑफ होली स्पिरिट चर्च के नाम से, यानी पाक रूह की कलीसिया, जिसको उर्दू में हम कहेंगे मिनिस्ट्रीज ऑफ होली स्पिरिट चर्च, जिसमें हमारे 3 चर्चेज इस वक्त पाकिस्तान कराची में काम कर रहे हैं और 2 चर्चेज सऊदी अरेबिया में थे। और अब एक चर्च जो है वहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि एक चर्च हमारे घर में था और एक चर्च हमने अलग से बनाया था जो कि बैचलर्स के लिए था सऊदी अरब के शहर जद्दा में, वो वहाँ पर काम कर रहा है। खुदा का शुक्र हो। और 2 चर्चेज इस वक्त हमारे UAE में हैं, यानी दुबई में है एक, और एक हमारा शारजा में है, जो जिसको आप भी विजिट कर चुके हैं। तो कराची में भी खुदा का शुक्र हो कि हमारे जो पास्टर साहिबान हैं खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं और खुदा का काम जो है वहाँ पर हो रहा है। आमीन। और हमारे पास्टर इलियास, पास्टर परवेज़ और पास्टर अरशद साहब हैं सऊदी अरब में। हमारे पास्टर्स जो हैं वो काफ़ी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि कोई आता है कोई जाता है। तो अभी हमारे वहाँ पे भी 2 पास्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। UAE में हमारे पास्टर नदब हैं और हमारी एवेंजलिस्ट बहन हमारी सिस्टर नीलम हैं जो हमारे साथ शाना बशाना काम करती हैं और बहुत से हमारे साथ खिदमत गुजार हैं। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ़ हो। हम इन सारे खिदमत गुजारों के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। खुदा इन सारे खिदमत गुजारों को बरकत दे। आमीन, हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि किस तरह से खुदा ने अपनी बंदी को, अपने बंदे को बुलाया, और ये बुलाहट ही सब कुछ है। जब हम खुदा की बुलाहट को सुनकर तो खुदा उनके पीछे हो लेते हैं अब्राहम की तरह, फिर खुदा हमें बरकतें देना शुरू करता है और उसके वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं कि मैं तेरा नाम सरफराज करूँगा, मैं तुझे बढ़ाऊँगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। तो फिर हम बरकत पाते हैं, हमारे ख़ानदान बरकत पाते हैं, नस्लें। और ना सिर्फ यहाँ तक रुक जाता है, बल्कि ये वादा आज भी हमारे साथ यीशु मसीह के वसीले से है कि तेरे वसीले से कौमें बरकत पाएंगी और फिर कौमें बरकत पाती हैं, कबीले बरकत पा रहे हैं। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। तो सिस्टर जी, मैं चाहूँगा आप बताएं कि आप जब एक माँ होते हुए, बीवी होते हुए, बेटी होते हुए अपनी बहनों को बताएं कि किस तरह से, ख़ास तौर पर बाबरकत घराने में किस तरह से किरदार अदा करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत बातें हैं ख़ानदान के ताल्लुक से और बहुत ही हम इंजॉय कर रहे हैं। यकीनन सुनने वाले भी बरकत पा रहे होंगे। मैं पास साहब के लिए एक बार फिर शुक्र करती हूँ कि जिनके वसीला से मैं इन सारी बातों को लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो सबसे पहली बात है कि औरत जो है सबसे पहले बीवी है। आमीन। और कलाम के मुताबिक हमें सबसे पहले अपने घर की गल्लाबानी करनी है, निगरानी करनी है, उसकी फ़िक्र करनी है। मियाँ बीवी जब एक होते हैं तो क्या है, सबसे पहली जिम्मेदारी उन दोनों की एक दूसरे के लिए। और पास मैं बड़े ही फ़ख्र से और यीशु के जलाल के लिए बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई, मैंने ऑनेस्टली अपनी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं किया, ना ही मैंने किसी चीज़ को अव्वल दर्जा दिया। अपने बच्चों को प्रायोरिटी दी,
सबसे पहले शोहर को, फिर खुदा ने जब औलाद बख्शी तो औलाद को। बच्चों को। हम सऊदी अरब में रहते थे, सऊदी अरब के शहर जद्दा में, अबहा में जब हमारी शादी हुई तो हम वहाँ पर थे, यानी फौरन आफ्टर 2 साल के बाद वहाँ पर चले गए। मेरी शादी के बाद यानी 5 साल पहले से थे। वो एक ऐसा एरिया था, टाउन था, जहाँ पर कोई स्कूल नहीं था, यानी इंग्लिश स्कूल नहीं था, कस्बा था। अरेबिक स्कूल्स थे, लेकिन अरेबिक स्कूल्स में हम अपने बच्चों को एडमिशन करवाते तो बहुत ही मतलब यूजलेस था। तो उसमें वहाँ पर फिर क्या किया, क्योंकि मैं बेसिकली मैं टीचर हूँ, प्रोफेशनली आई एम टीचर। तो उसके साथ ही मैंने जो टीचिंग के साथ मैंने अपनी बिब्लिकली अपने घर में जो हमने परवरिश पाई एज ए बेटी भी आपने कहा था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं अपने वालिदैन को भी याद करना चाहती हूँ, हालेलुया। और मेरे वालिदैन जो है इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ पास्टर साहब कि आज जो कुछ भी मैं हूँ या मेरे बहन भाई हैं वो सिर्फ मेरे माँ बाप की बदौलत। आमीन। मेरा घराना, मेरे माँ बाप बहुत बाबरकत थे। हमारा जो चर्च जो मेथोडिस्ट चर्च है वो उसको बनाने वाले थे। तो वो ये बुनियाद जो है वो शुरू से बनाई गई थी। और मैंने 7 ईयर्स हमारा ख़ानदान जो था, मेरे बहन भाई, हम 7 बहन भाई थे, 7 बहन भाइयों ने चर्च की 1 बाय 1 खिदमत की थी मेरे माँ बाप के साथ मिलकर, और उन्होंने करवाई। और वो जो तालीम थी हमारे अंदर थी, और ये तालीम जो थी वो फ़ायदेमंद हुई। जब हमारी शादी हुई तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे इलाके में चली गई जहाँ ना तो क्रिश्चियन लोग थे और ना स्कूल एजुकेशनली दुनियावी तालीम भी नहीं है, ना रूहानी तालीम है, ना कोई चर्च है और ना ही लोग हैं। ना आपको माहौल ऐसा मिलेगा कि आप अपने बच्चों को रूहानी तालीम दे सकें, और ना ही आपको ऐसी तालीमी इदारा मिलेगा कि आप अपने बच्चों को भेज सकें। दोनों तरह से खुदावन के यस्सु के नाम को जलाल मिले कि खुदावन ने ये दोनों बरकतें जो थी वो डाली हुई थी हमारे घराने में, ख़ास तौर पर माँ के अंदर। कि मैंने 7 साल संडे स्कूल की टीचिंग की थी अपने माँ बाप के घर में। संडे स्कूल करवाती थी, मैं टीचर थी संडे स्कूल की, और वो सारी जो तालीम थी मेरे अंदर थी कलाम की। तो वहाँ पर आप यकीन करें पास, अब मैं सऊदी अरब में अब्बा में अपने बच्चों को only was one family and all were Muslim, मैं अपने बच्चों को अपने घर में एवरी फ्राइडे संडे स्कूल करवाती थी। वाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। 4 बच्चों को, आमेन। 4 बच्चे ऑल टुगेदर, 2-2 साल का फर्क था, और मेरा कोई फोकस नहीं होता था, मेरा शोहर, मेरे बच्चे, कोई दोस्ती नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। अगर थी, हालेलुया, ये जो बेस थी वो बनाएगी। और स्कूल जो दुनियावी तालीम थी उसको ऐसे जारी किया, क्योंकि मैं टीचर थी, कोर्स लाती थी मैं जद्दा से, हम लोग लाते थे, और मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी। पास्टर साहब सुबह जाते थे, रात को आते थे अपने ऑफिस से, उनका काम था, कंपनी में जॉब करते थे, और मैं अपने बच्चों को घर का काम भी करती थी, रूहानी तालीम भी देती थी और दुनियावी तालीम भी। और हर साल पर सब आप यकीन करें 100 से ज़्यादा फैमिलीज थी वहाँ पे मुस्लिम। लेकिन जब पहला साल हुआ, जब मेरे बच्चों की तालीम का रिजल्ट आया, तो हम वहाँ पे एक पेरेंट्स कमेटी बनाई गई थी। मैं इसलिए ये बता रही हूँ ताकि पेरेंट्स जो हैं वो बरकत पाए, इनकरेज हो कि अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है, आपके पास चांस नहीं है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, लेकिन आप अपने घर में भी सब कुछ कर सकते हैं। प्राइवेटली मैंने खुद घर में पढ़ाया 8वीं क्लास तक 4 बच्चों को, और हर साल का जो रिजल्ट होता था 110 फैमिलीज में से हमारे बच्चों का टॉप पे होता था। एवरी बच्चा जो मेरा था टॉप करता था, सेंटर में टॉप, स्कूल में टॉप, क्लास में टॉप, क्रिश्चियन बच्चे, एक फैमिली और सारे मुस्लिम। आप सोचे कितनी मेहनत है। रूहानी तौर पर भी वो हमारी इज्जत करते थे। जैसे ही हमारे बच्चे ने पहला साल का रिजल्ट आया और वो सेलिब्रेशन हुई, हमने होटल में अरेंज किया, पेरेंट्स कमेटी बनाई गई थी बच्चों के मोटिवेशन के लिए, ताकि वो बच्चों को मोटिवेट करें, उनकी हौसला अफजाई करें रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जब पहला रिजल्ट अनाउंस हुआ और मैं आंसुओं से रो रही थी, मेरा बड़ा बेटा 6 साल का था, जब पहला मेडल मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, आई वॉज लिटरली क्राइंग कि ये कैसे मुमकिन। कहीं एक नंबर की भी कमी नहीं थी। पूरे उसने जद्दा के स्कूल में टॉप किया, उसने अपनी क्लास में टॉप किया, पूरे 80 रीजन में टॉप किया, 3 मेडल्स। तो ये माँ का किरदार है, जो एक माँ होते हुए अपना सब कुछ अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट कर, मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, किसी के साथ गप्पे नहीं लगाती थी, अपना वक्त भी बच्चों के साथ इन्वेस्ट किया, सुबह के वक्त रात तक अपनी जिंदगी का एक लम्हा, एक दिन अपने बच्चों पर, अपने शोहर पर वक्फ किया। और सारी फैमिलीज जो थी
वो प्राउड फील करते थे कि हम हमारे पास आए, हमसे मिले, हमसे सीखें कि कैसे सिखाते हैं। और देवर ऑल डॉक्टर्स, कर्नल्स जो हमारा हल्का था पाकिस्तान के थे, और हमारा जो 7 फैमिलीज थी हमारी, जो हम ऑल टुगेदर रहते थे, जनरल्स थे, कर्नल्स थे, आर्मी के लोग, डॉक्टर्स आर्मी के से 6-7 फैमिलीज थे जो हम ऑल टुगेदर रहते थे हमेशा। और हमारे ही घर में हम एक फैमिली की तरह रहते थे, आना घर का मतलब हर ओकेजन हम उनके साथ सेलिब्रेट करते थे, हमारा वो करते थे, हम उनके साथ। दे फील प्राउड टू लिव विद अस, टू स्टे विद अस। व्हाई? बिकॉज हमारी जो खुदावंद की हजूरी, खुदावंद की मौजूदगी, खुदावंद का कलाम हम उनके साथ शेयर करते थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत और ईमान अफरोज बातें हो रही हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। तो सिस्टर जी, आप क्या पैगाम देना चाहती हैं अपनी बहनों को? हालेलुया, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ, ख़ास तौर पर एज ए माँ, एज ए बीवी। मैं ये कहूँगी, खुदावंद कहता है कि जो कुछ भी करते हो वफादारी से करो। सबसे पहली बात वफादारी, अपने घराने से, अपने शोहर से, अपने बच्चों से, अपने घर से। घर के कामों में वफादारी करें, अपने बच्चों से वफादार रहें, बच्चों की सारी जिम्मेदारियां हैं उनको ऑनेस्टली पूरा करें, क्योंकि माँ का पहला फर्ज है, बाप सरबराह है। और मैं बताना चाहूँगी कि बाप यकीनन हेड ऑफ द फैमिली है, सरबराह है, लेकिन बाप की जिम्मेदारियां जो है वो और भी हैं। वो ऑल द टाइम घर पे नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने कमाना है, वो बाहर निकलना है। और माँ जो है वो घर में रहती है, घर की देखभाल, इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं वो, उसका काम है कि वो करे। तो माँ अगर अपना सारा फोकस अपने बच्चों पर करती है और अपना सारा ध्यान उनकी तरफ लगाती है, अपनी इंजॉयमेंट के नहीं, अपनी गपशप के लिए नहीं, अपने आप के लिए वक्त ना गुजारे, क्योंकि अच्छे घराने को परवान चढ़ाना, उनको परवरिश देना, ये मेरा और आपका फ़र्ज़ है। और खुदावंद कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो हमें अजर ना दे। जब हम अच्छी बेस अपने बच्चों की पासा बनाएंगे, तो कैसे हो सकता है कि वो बेस खराब हो? बुनियाद जो डाल दी गई है यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, जो हमारा क्या है, सॉलिड रॉक है। हालेलुया, जो चट्टान पर खड़े हैं, वो खड़ा है घर, तो उस चट्टान बर्बाद नहीं हो सकता। ना आंधी ना तूफान, वो खानदान कभी बर्बाद नहीं होंगे, सरफराज होंगे और सरफराज पाएंगे और सर बनेंगे, दुगने बनेंगे। आपके बच्चे, आपके घराने, दुनिया में, सोसाइटी में, आपके माशरे में, आपके खानदान में बरकत ही बरकत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बातें हैं। हम इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और फिर हम बाद में बीमारों के लिए दुआ करेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा सिस्टर जी, वो ये है कि आप किस तरह देखते हैं जब अब सोशल मीडिया है और बहुत सारे हमारे ख़ास तौर पर जो इलाके हैं, मुल्क पाकिस्तान को ले लेते हैं, तो सोसाइटी में ख़ास तौर पर क्रिश्चियंस के लिए मैं कहूँगा कि किस तरह बच्चे इस फोबिया से बच सकते हैं, क्योंकि अब तो ये सोशल मीडिया जो है, ये फ़ायदे तो ठीक हैं, इसके हैं, लेकिन बहुत सारे ज़िंदगियाँ नुकसान भी हो रहा है, बेटे बेटियों का नुकसान हो रहा है। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? बस अब ये बहुत ही संजीदा टॉपिक है, और आप सोच भी नहीं सकते कि मैं पर्सनली जहाँ पर भी खुदावंद हमें लेकर जाता है, जहाँ पर हम रहते हैं, जो भी जहाँ पे खिदमत करते हैं, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हैं। और ख़ास तौर पर क्योंकि हम अभी इस वक्त ख़ानदान के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो ख़ानदान के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एज ए पेरेंट्स, फादर एंड मदर, हमारा ये काम है कि अपने बच्चों को सबसे पहले तो ये मैं कहूँगी कि उनको टाइम दे। आमीन। सबसे पहला काम है उनको टाइम दे। Don't be absent father or absent mother. Yeah, we should not be absent from them. Yes. Right? And we have to be alert what they are doing. Amen. Yes. And we have to give check them and the balance. check and in balance. Yes. And we have to focus on them. All their activities. Yes. और उनके जो friends हैं, उनके साथ भी आपका राब्ता होना चाहिए। And आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, क्या कर रहे हैं, और उनके दोस्त जो हैं या लड़के किस टाइप के हैं। पहली बात ये है
اس کے بعد یہ کہ ایز اے فیملی ہوتے ہوئے آپ نے اپنے بچوں کو اگنور نہیں ہونے دینا. اگر آپ خادم ہیں, فار ایگزامپل پیرنٹس ہیں, ماں باپ ہیں, یا خدمت میں خادم ہے یا خادمہ ہیں, آپ بہت بزی ہیں, آپ جگہ بہ جگہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہے حقیقت. لیکن فرض کریں کلام کہتا ہے کہ آپ اگر کلام کہتا ہے کہ انسان اگر ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہے. تو جان ہمارے بچے ہیں, ہم سب جان اپنے بچوں کے لیے ہم اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اس سے بڑھ کر, کیونکہ یہ سب سے پریورٹی, پہلا ذمہ داری ہماری ہے. اور کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گلہ کی گلہ بانی نہیں کر سکتا تو وہ خدمت میں ایز اے خادم ہوتے ہوئے میں یہ پہلے اپنے گھر کا بندوبست, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر میں بھی اسی ٹائپ کا ماحول بنانا ہے. بچوں کو پروان چڑھاتے وقت, ان کی تربیت کرتے وقت ہر روز ان کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے. 1 گھنٹہ ضرور نکالیں, آدھا گھنٹہ ضرور نکالیں, میاں بیوی دونوں بیٹھیں, تاکہ خداوند کی حضوری معموری ان کے زندگی میں بھی وہ ٹرانسفر ہو, آتی رہے. اور کلام جب ان کے اندر جاتا رہے گا تو کلام ان کو تبدیل نہیں ہونے دے گا, چاہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس بات سے مڑے. جی وہ یہی بات مجھے امثال کی کتاب سے, تو لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اس نے چلنا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ذمہ داری والدین کی ہے, باپ کی ہے, اور اس سے زیادہ ماں کی ہے, دونوں کی گھر میں رہتی ہے, اور اس کو ماں کے ساتھ بچوں کی اٹیچمنٹ بھی بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. بس میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو ایسا ہوم ورک دیں, اسپریچول, دنیاوی طور پر بھی ان کی تعلیم کا خیال رکھنا تاکہ سرفرازی پائیں, ایک اچھا سٹیٹس اس زندگی میں گزاریں, سوسائٹی میں ان کو عزت ملے. ماں باپ کا فرض ہے. یہاں پر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں دونوں باتوں کا, دنیاوی تعلیم کا, روحانی تعلیم کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بیلنسڈ لائف ہے. ماں باپ کا یہ فرض ہے, ہر چیز مہیا کرنی ہے ان بیلنس. بالکل میڈیا ایک بیلنسڈ لائف ہو, سوشلی بھی, ورلڈلی بھی, اور اسپرچولی بھی بیلنسڈ ہو. آپ اپنے بچوں کو اس طور پر اپنے ساتھ رکھیں کہ آپ کو پتہ رہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. آج میں خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے, ہمارا گھر آپ بھی جانتے ہوں گے, خداوند کے فضل سے یسوع کے جلال کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں خداوند نے انہیں سرفرازی دی ہے. کیونکہ میں نے اپنے بچوں کی تعلیم میں کچھ نہیں ہوں, یہ نہیں میں کہہ رہی میں نے خداوند نے کیا ہے, میں کچھ نہیں ہوں, لیکن ماں باپ کی کافی ضرورت ہے کیونکہ اس نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے, یہ ہمارا فرض ہے ہمارے. اور ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنا ٹائم, اپنی زندگی انویسٹ کی, ایک دن ابھی جب انویسٹ کیا تو پھر خدا نے برکت دی. پھر برکت دی. اگر آپ ٹائم نہ دیتے, انویسٹ کرتے, اپنی لائف ان کے ساتھ نہ شیئر کرتے. دیکھیں بس اب یہ زندگی شیئر کرنے کی بات, ان کے ساتھ شیئر کی ہے بالکل کمپلیٹلی, کیونکہ یہی ہمارا اولین فرض ہے. یہ اولین فرض ہے ایز اے مدر, ایز اے فادر. ٹھیک ہے, پسند ایک ریفرنس میں ضرور پڑھنا چاہوں گی کلام مقدس میں سے. ہاں جی, کلام میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب 1 باب اور اس کی 27ویں آیت کو میں سامنے پڑھوں گی. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر اور ناری ان کو پیدا کیا. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. پہلا خاندان تھا یہ, خدا نے بنایا, پہلے آدم کو بنایا, پھر بیوی کو بنایا, اس کو برکت دی اور 3 حکم دے دیے. کیا کیا؟ پھلو, بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. دیکھیں کیا ہے ماں باپ کا فرض؟ پھلنا ہے, جی, بڑھنا ہے, معمور کرنا ہے, محکوم کرنا ہے. یس, محکوم کا مطلب کیا ہے؟ غلبہ پانا. ایسے اپنے بچوں کو پروان چڑھانا ہے, دنیاوی طور پر, روحانی طور پر بڑھانا ہے تاکہ وہ پھلیں. پھر کیا محکوم کریں, کیونکہ ہم کیا ہے خدا یسوع مسیح کے اس اختیار کو حاصل کر چکے جو اس نے ہمیں دیا ہے. آمین, ہم حاکم ہیں, ہم حکومت کرتے ہیں. آمین, آمین, ہاللویا. روحانی طور پر بالکل, آمین, ہاللویا. روحانی طور پر, دنیاوی طور پر بھی. ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی طور پر بھی
हाकिम बनाना है, Yes. हाकमियत में लाना है, उनकी Yes. तालीम और तरबियत सोसाइटी में इस तौर पर करनी है। Yes. आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको सब खुदा का शुक्र, आपको पता होगा हमारा बेटा सबसे बड़ा जी, बेटा जो वो डॉक्टर डॉक्टर सनी है है। और स्पेशलिस्ट अभी स्पेशलिस्ट कर चुके हैं, अभी दूसरी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, यूके में है सेटल। और उनकी जो मिसेज है वो भी ENT सर्जन है, वो डॉक्टर है। इसके बाद जो हमारे छोटे बेटे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CCA किया उन्होंने, इंग्लैंड से किया। उनके मिसेज जो है वो भी खुदावंद के फजल से रूहानी तौर पर भी और दुनियावी तालीम में भी बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने उसमें केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है। और इसके साथ हमारी 3rd नंबर पे जो बेटी है वो भी डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। और ये तीनों बच्चे जो हैं आला तालीम याफ्ता, उनके हस्बैंड जो है वो साथ खिदमत में भी और वो हैं आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, उनका घराना भी खुदा में। हमारे बच्चे साथ दुनियावी तालीम से और रूहानी तालीम से माला माल हैं। जो छोटी बेटी हैं वो साथ ये अभी हमारे साथ है, वो भी यूके जा रही है खुदा के फजल से अपनी यूनिवर्सिटी में। और वो भी अपने दूसरे भाई की तरह जो छोटा बेटा है रॉकी, फाइनेंस में बिजनेस में, फाइनेंस एंड बिजनेस में जा रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। तो वो भी इसी तरह इसी लाइन में जाएंगे। और साथ में बताना चाहती हूँ चारों बच्चे जो हैं खुदावंद के फजल से उसकी रहनुमाई में खिदमत में हैं। सब खुदावंद के नाम को सारा चला। हालेलुया, हालेलुया। और साथ ही साथ रूहानी तौर पर भी वो बहुत सरगर्म है। जिस तरह जो रॉकी है उसका बैंड है उनका, तो वर्शिपर हैं वो, ये बेटी है छोटी, ये वर्शिपर है, खिदमत कर रहे हैं। सब पियानिस्ट हैं, गिटारिस्ट हैं, सब चारों बच्चे बजाते हैं, गाते हैं, बेटे भी और दामाद भी और बहू भी खिदमत में, अगुवाई में है। और खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। तो हमारे जो बड़े बेटे हैं वो वाइस चेयरमैन है हमारी मिनिस्ट्री के, और उनके वसीला से ये पाकिस्तान कराची का चर्च जो था क्या में आया। उनके मामू जो मेरे छोटे भाई हैं वो भी पास्टर हैं, और उन्होंने दोनों ने मिलकर चर्च तामीर किया और खुदावंद ने बरकत दी। और वो दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। हमारे सारे पास्टर अरशद हमारे भतीजे हैं, मेरे पास्टर के बहन के बेटे, हम सब ने वो भी पास्टर हैं। हालेलुया। तो घराना बबरकत बन जाता है। और कहाँ से हमने शुरू किया कि इनके बेटे ने जब डॉक्टर है, डॉक्टर सनी, उसने निजात पाई और किस तरह से उसने सारे घराने को यीशु मसीह के इस वादे में जो खुदा ने खुद किया कि तू निजात पा तो तेरा घराना निजात पाएगा, उसमें ले आया और सारा घराना निजात पा गया। और आज वो खुदा यीशु मसीह में जो खिदमत कर रहे हैं उससे वो बड़े शादमान हैं और मुतमिन हैं। अजीज़ों, मैं चाहता हूँ हमें, मुझे, आपको, हम सबको इन गवाहियों से सीखना है और ये जानना है कि किस तरह हम जब खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो हम खुदा के कलाम के मुताबिक बाबरकत घराने बन जाएंगे। दुनियावी सरफराजियाँ भी मिलेंगी, रूहानी सरफराजियाँ भी मिलेंगी, और खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाएगा। उसकी बादशाहत के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आज के प्रोग्राम के वसीले से सिस्टर जी फिर एक बार खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया। और हम पास्टर साहब को यकीनन मिस कर रहे हैं और वो होते तो वो हम उनसे पूछते हैं कि शोरों के मतलब आप क्या कहेंगे। वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं। जी, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो शुक्रगुजारी करते हैं हम इस वक्त उन्हें दुबई में ही उनके लिए दुआ गो हैं, वो खिदमत में हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, बिजी हैं। तो खुदा बरकत दे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग जोशुआ टीवी। और मैं चाहता हूँ आखिर में हम बीमारों के लिए दुआ करें, अपने सरों पर अपना हाथ रख लें। और मैं कहूँगा खुदावंद आपको जो भी बरकत देता है, ब्लेसिंग देता है, उसकी गवाही ज़रूर आकर चैनल पर दें ताकि यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले और आपकी गवाही से दूसरे बरकत पाएँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप समझते हैं आपका घराना बरकत है तो आप जोशुआ टीवी पर आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर चल रहे हैं, और आप आएँ। पाकिस्तान या दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं आप आएँ और जोशुआ टीवी के इस प्रोग्राम बाबरकत घराने में मेरे साथ बैठकर अपनी गवाहियाँ शेयर करें दुनिया के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसके अलावा मैंने बताया ये चैनल जो है वो आपकी दुआओं से चल रहा है, इसे दुआओं में याद रखें, और आपके माली तामन से चल रहा है। इसे अपनी दुआओं के साथ साथ अपने फिनेंसिस में भी याद रखें, और दैयकियाँ, हदिये, अंजील की मुनादी के लिए ज़रूर सपोर्ट करें ताकि यीशु मसीह का नाम जलाल पाए।
खुदावंद आपको बरकत दे। आइए जो बीमार हैं वो अपने सरों पर हाथ रखें और हम दोनों खुदा के खादम और खुदा की खादमा मेरी बहन और मैं हम मिलकर आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, हम दोनों बहन भाई मिलकर खुदा पाक खुदा इन बीमारों के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। रबा शत रूसता रबंतारा यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह की भी लानतें हैं, जिस तरह की भी परेशानियां घरों में, जिस तरह के भी मसाइल हैं, जिस तरह की भी खुदावंद कुदूस खुदा मुश्किलात हैं, यीशु मसीह के नाम में वो घरानों और खानदानों से चली जाए और खुदावंद तेरे लोग तेरी मोहब्बत से भर जाएं। खुदावंद तेरे कलाम की रहनुमाई में चले, तेरी कलाम के असूलों से ना हटे और खुदावंद तुझ पर ईमान रखते हुए, तुझ पर तवक्कल रखते हुए, खुदावंद तेरे कलाम पर भरोसा रखते हुए, तुझ पर ट्रस्ट करते हुए खुदावंद ऐसे घराने बन जाएं जो बबरकत घराने हैं और कभी किसी हालात में भी तुझे ना छोड़े, हर तरह के हालात में तेरे साथ रहे बंधे रहे। और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ जो बीमार हैं खुदावंद हर तरह की बीमारी को, हर तरह के दर्द को, हर तरह के कर्ज को, हर तरह की लानत को, हर तरह के इब्लीसी तासीर को, हर तरह की बीमारी को यीशु मसीह के नाम से डांटते और बांधते हैं। वो इन बदनों को छोड़ दें और घरानों में जो लोग खुदावंद बच्चे जवान या कोई भी खुदावंद नशे की लानत के नीचे है यीशु मसीह के नाम में वो आजाद हो ताकि ये घराने बाबरकत हो जाएं, सूद की लानत से आजाद हो, कर्ज की लानत से आजाद कर, परेशानियों से आजाद कर। बच्चे खुदावंद तेरे ताबे हो जाएं, माँ बाप तेरे ताबे हो जाएं, लबरू शंदा रबसा और तेरा नाम चला। ब्लेस कर, तेरी अनॉइंटिंग इन पर ठहरे और खुदावंद बंधनों को तोड़े, हर तरह के बंधन घरानों और खानदानों में से टूट जाए और नाकामियां इन घरानों की यीशु के नाम में उन्हें यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं। नाकामियां कामयाबियों में बदल जाएं और खुदावंद तेरा नाम चलाल पाए। खुदावंद तेरे लहू को अपनी जिंदगियों पर लगा के तौबा करके बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के साथ चले ताकि इनके घराने बाबरकत हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून, कीप वाचिंग जोशुआ टीवी। और मैं हमेशा आपके घरानों के लिए दुआ करता रहता हूँ। आप खुद भी खुदा यीशु मसीह में बढ़ने के लिए जान फशानी करते रहे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट फैमिली प्रोग्राम के साथ हम आज लॉयल्स फैमिली के साथ हैं। दुआएं कर रहे थे और मैं उनको बता रहा था कि हमारे जो पूरी टीम को बारी बात देते हैं कि उनकी नशरियात 24 घंटे के लिए हम देख सकते हैं